ইন্ডিয়া, যেটা সর্বভারতীয় একটা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানদেরকে নিয়ে যে সংস্থাটি, সেটার নর্থ ইস্ট চ্যাপ্টার 1, যে চ্যাপ্টারে আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, এই 4টা স্টেট নিয়ে 4টা স্টেটের যতগুলো বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সংস্থা আছে, সেই সংস্থাদেরকে নিয়ে এই আমাদের অ্যাসোসিয়েশন। এটা হলো যেমন এটা হচ্ছে আমাদের AHPI 1, AHP 2 যেরকম হয়, মণিপুর রয়েছে, নাগাল্যান্ড রয়েছে, আদার স্টেটগুলো রয়েছে, এরকম সারা ভারতবর্ষে অনেকগুলো চ্যাপ্টার আছে। এইগুলো চ্যাপ্টারের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে দিল্লিতে আছে। আমাদের এই যে আপনাদের জানার জন্য বলছি, সরকার যখন কোনোরকম সিদ্ধান্ত নেয়, সরকারি পর্যায়ে যখন সিদ্ধান্ত নেয়, তখন AHPI-কে ডেকে AHPI-এর সাজেশনটুকুও নেয়। ওদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, যদি আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করি, আমরা যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে যাই, তাহলে আপনাদের কি সুবিধা অসুবিধা আছে, সেটা আমাদেরও মতামত ওনারা নেই। সুতরাং এই অর্গানাইজেশনের যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট, যথেষ্ট মাহাত্ম্য আছে বলে আমি মনে করি। দ্বিতীয় কথা হলো, এখানে আমার সঙ্গে বসে আছেন AHPI জেনারেল সেক্রেটারি মিস্টার রোহিত উপাধ্যায়, জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল সেক্রেটারি রোহিত উপাধ্যায়, জয়েন্ট সেক্রেটারি ডক্টর সীমা কৌর, আমার বাঁ পাশে রয়েছেন সেক্রেটারি ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন ডক্টর গীতার্থ রয় মেধি, এডুকেশন ডক্টর গীতার্থ রয় মেধি, অম্বরীশ চক্রবর্তী, এক্সিকিউটিভ মেম্বার। যে আমরা অতীতে কি করেছি সেটার পর্যালোচনা হয়েছে, আগামীতে কি করব সেটার পর্যালোচনা হয়েছে, মানে সেটার দিক কী হবে সেটা নেওয়া হয়েছে, কি করতে হবে। আর আগামী 2 বছরের জন্য যে কমিটিটা হবে, পুরনো কমিটি ডিসলভ করে নতুন কমিটি করা হয়েছে। নতুন কমিটি, পুরনো কমিটি সবাই রয়েছে, শুধু প্রেসিডেন্ট, যেটা প্রেসিডেন্ট পরিবর্তন হয়েছে। আপনাদের জানার জন্য বলছি, বিগত কমিটিতে আপনারা জানেন আসামের একজন সুনামধন্য অফথালমোলজিস্ট ডক্টর হর্ষ ভট্টাচার্য, উনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট। তো ওনার স্থলাভিষিক্ত আমার বাকিটা আই রিকোয়েস্ট মিস্টার উপাধ্যায় টু সে ফিউ ওয়ার্ডস অ্যাবাউট দি অর্গানাইজেশন, what we are going to do or what we have done in this. ये एक नेशनल बॉडी है, 2012 में एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर से इसको रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, और हर स्टेट का अपना अपना चैप्टर है। सिंस नॉर्थ ईस्ट हम लोग का 8 स्टेट काफ़ी छोटा छोटा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी नहीं है, तो हमने 4 स्टेट ऑलरेडी मजिंदर साहब ने बताया, 4 स्टेट मिला के हमने एक NE1 चैप्टर बनाया है, नॉर्थ ईस्ट 1 चैप्टर। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट 2 भी चैप्टर है। At present, more than 30,000 hospitals across India are the member of AHPI. Secondly, AHPI जैसे रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट जो अपना रेगुलेशन देता है या डायरेक्शन देता है ऐसा करो, उस चीज़ में हम लोग का राय लेता है, हम लोग का इनपुट लेता है, हम लोग को सुविधा होता है। आज आप देखेंगे इंडिया में या इवन तो असम में भी देखेंगे, प्राइवेट हेल्थ केयर जितना है गवर्नमेंट से प्राइवेट हेल्थ केयर ज़्यादा है। तो प्राइवेट हेल्थ केयर का सर्विस हो या इनपुट हो, प्लस एम्प्लॉय स्ट्रेंथ हो, प्लस जितना चीज़ें, वो काफ़ी मायने रखता है पेशेंट को सर्विस देने में। और हेल्थ केयर स्टेट सब्जेक्ट है, आप लोग को पता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से रूल फॉर्मुलेशन करता है, तो इसलिए हर स्टेट का अपना अपना चैप्टर है। कुछ चीज़ हम अपने स्टेट लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं, कुछ चीज़ हमको सेंट्रल की भी मदद चाहिए होता है। जैसे आप लोगों को पता है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसमें रेट तय होता है दिल्ली से, उसके लिए हम लोग को दिल्ली को लिखना पड़ता है। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी, जो IRDA में भी कुछ चीज़ होता है जो हम अपने तरफ से इनपुट देके सेंट्रली उसको टेकअप करके IRDA के साथ करते हैं। अब AHPI जैसे सेंट्रल बॉडी है और हर स्टेट का अराउंड 22 स्टेट चैप्टर से आज के दिन में, और मोर देन 30,000 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन से।
इसमें हम लोग रेगुलेटरी इश्यूज तो मैंने बताया, दूसरा ट्रेनिंग भी हम लोग कराते हैं बीच में। ट्रेनिंग रिलेटेड चीज़ होता है जो आदमी को हेल्थ केयर ऐसा इवॉल्विंग चीज़ है, नया नया चीज़ आता रहता है, नया नया साइंस है, हेल्थ केयर साइंस हम लोग बोलते हैं, तो नया नया चीज़ आता है तो उसके लिए हम लोग को रेगुलर ट्रेनिंग का ज़रूरत होता है। और असम में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो हेल्थ केयर को रिप्रेजेंट करता था। आज के दिन में आप ऑटो वाला, रिक्शा वाला का भी एक एसोसिएशन है, आप जानेंगे तो, है ना। तो उसी तरह हेल्थ केयर का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं था। हम लोग ने 2021 से एसोसिएशन शुरू किया है और ड्यूली रजिस्टर है विद द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर। 2023 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंडर रजिस्ट्रेशन हुआ और पास में हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ किया है, जैसे कि कोविड के दौरान हमने बहुत सारा हॉस्पिटल को फ्री कॉन्सेंट्रेटर डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमको सेंट्रल टीम के तरफ से आया था। उसके बाद हमने कोविड क्रैश कोर्स, बहुत लोगों को कोविड के ऊपर नॉलेज नहीं था, उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया कैसे कोविड पेशेंट को हैंडल किया जाता है। उसके बाद हमने स्किल डेवलपमेंट, एनएसडीसी के अंडर रह के स्किल डेवलपमेंट, पेशेंट्स को अब लीजिए इवन तो बेडशीट को कैसे फोल्ड करना है पेशेंट को, जो उससे दूसरों को इन्फेक्शन ना हो। बहुत लोगों को पता नहीं, बेडशीट ले गया एक बार हाथ में लेके जस्ट डंप कर देता है डस्टबिन में या कहीं, लेकिन उसको फोल्ड कैसे करना है, उसका जर्म्स दूसरे तरफ ना जाए, उसके ऊपर भी हम लोग ने ट्रेनिंग की। और जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए पार्टिसिपेट होता था वो हॉस्पिटल को भी इंसेंटिवाइज एनएसडीसी किया, 3000 करके पर कैंडिडेट जिसने पास आउट किया उसको भी मिला, और जो कैंडिडेट ने वो कोर्स में एनरोल किया उसको भी पैसा मिला। कैंडिडेट गवर्नमेंट और स्टेट फायर डिपार्टमेंट SDRF के साथ मिलके और हमने फायर ट्रेनिंग दिया था। गुवाहाटी के मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल ने पार्टिसिपेट किया है। रियल इवैक्यूएशन मॉक ड्रिल भी हम लोगों ने किया है। तो इस तरह का एक सब मिलके हम लोग कर रहे हैं काम, सो दैट अल्टीमेटली हम लोग को चाहिए खुश होके पेशेंट जाए ऑफिस में। तो खुश होके जाने के लिए हम लोग को सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, वो उसके लिए हम लोग एकजुट होके काम कर रहे हैं, फ्यूचर में भी काम करेंगे। आज काफी खुशी का मौका है आप लोग के, हमारा फर्स्ट टाइम हो रहा है गुवाहाटी से बाहर, तो ये मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो हम लोग सब मतलब एक ये जो यूनिटी है बढ़ते जा रहा है। आज গিয়া যেটা আপনারা জানেন আমি ওটার সভাপতি ছিলাম, তো এটা ডিজলভ হয়ে গেছে। এটা স্টেট লেভেলে ছিল, সেটা ডিজলভ হয়ে আমরা HPI এর সঙ্গে মার্চ করেছিলাম, এমালগেমেশন হয়ে গেছে। এটা কি আজকেই হয়েছে? এখানে আজকে হয়েছে, বাকি গুয়াহাটি আগে হয়ে গেছে। আজকে এখানে হবে, আজকে এখানে প্রায় 75 থেকে 80 জন মেম্বার ওরা জয়েন করবে। এখন সারা ভারতবর্ষে সারা রাজ্যে একটাই অ্যাসোসিয়েশন, সেটা হলো HPI। আমি আপনাদের সবার সামনে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আজকের যারা বিভিন্ন স্টেট থেকে এসছেন, গুয়াহাটি থেকে এসছেন, রিজনিং স্টেট থেকেও এসছেন, ওনারা এখানে এসে যা আমাকে যে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ওনারা যে সিলেক্ট করলেন এর জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনাদের প্রেসের মাধ্যমে আমি ওনাদের কৃতজ্ঞতা, শুধু ওনারা তো এসছেন কিন্তু সারা আসামে আমাদের অনেক মেম্বাররা রয়েছে, সুতরাং প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নর্থ ইস্টে তো আপনাদের 4টা স্টেট, 4টা স্টেট নিয়ে তো চ্যাপ্টার 1, টোটাল মেম্বার কত? নর্থ ইস্ট ওয়ান যেটা, টোটাল মেম্বার কত 4টা স্টেটে? টোটাল মেম্বার আমাদের এটা নিয়ে না টোটাল চ্যাপ্টার 1 না না আজকের এটা নিলে গিয়ে अराउंड 200 যদি কাউন্ট করি আমরা তখন अराउंड 200 anyone any two কি মানে বাকি সেটা হলো মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম,